Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with a very important topic from the chapter planning, as well as at the same time a most confusing topic from the chapter planning. And today in this video I have tried to take the help of animation as well as case studies question along with its solution for the better understanding and for the easier understanding of the topic. So before initiating for today's video, I would like to request you all to please subscribe my channel if not yet done yet, and please press the bell icon so that you will get the latest notification of my upcoming video. So let's start today's video. So we will start with the meaning of plan, and here it is. Plan is a sort of commitment to accomplish all the activities needed for the attainment of special result. Planning is a process, whereas plan is its outcome. So you can compare the meaning of plan with planning. In other words, plan is a document that outlines how goals are going to be met. It is a specific action proposed to help the organization to achieve its objective. Now, next part of the video is types of plan. So there are two categories under the types of plan. First one is standing plan or repeatedly used plan. This plan focuses on situations which occur repeatedly. Standing plans are used over and over again. They are made once but retain their value over a period of years. These plans include policy, procedure, method and rules. So जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नाम ही इसका सजेस्ट करता है इसके मीनिंग को। स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान जो हमेशा के लिए बनाया जाता है या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए, जो एक बार बन जाता है और बार बार उसको यूज करते हैं, एंड नो डाउट विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन एज पर द सिचुएशन रिक्वायर्ड। और इसके अंदर जो प्लान कंसिडर किए जाते हैं या इंक्लूड किए जाते हैं वो है पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंगल यूज और एड हॉक प्लान। सो जैसा नाम में है, ऐसा प्लान जिसको कि एक बार के लिए बनाया जाता है, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म। It refers to a plan that is used to meet the needs of a particular or a unique situation. किसी एक particular situation के लिए या फिर किसी unique situation को handle करने के लिए. These plans include budget and program. Okay? So जैसा आप देख पा रहे हो, repeatedly used plan के अंदर 4 नाम और single use के अंदर 2 नाम, टोटल तो हुए 6. But you know well that हमारे सिलेबस में 6 नहीं 8 टाइप्स ऑफ प्लान है, तो वो 2 प्लान कहाँ गए? सो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, और वो इसी इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी आर द टाइप्स ऑफ प्लान विच आर नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ना ही सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में है और ना ही स्टैंडिंग प्लान में है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, these are neither single use plan nor standing plan. Okay, in this way we have 8 types of plan, and today we are going to discuss all the types of plan with example, meaning and case studies question. So I request you all to please watch till the end. Now let's start with the difference between standing and ad hoc plan, because जब तक आप इन दोनों के डिफरेंस को नहीं समझोगे तब तक आपको केस स्टडी क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। सो आई हैव ट्राइड टू टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस, ठीक है। सो देखिए, बेसिस और स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान में। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। सो स्टैंडिंग प्लान, these are made for long duration of time, and single use plan, these are made for very short duration of time, जैसा हमने मीनिंग में थोड़े पिछले स्लाइड में देखा था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गोल्स। दीज प्लान्स टू अटेंड द मेन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैंडिंग प्लान जो होता है, मेन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसी को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। एंड सिंगल यूज प्लान, दीज प्लान्स सीक्स टू अटेंड स्पेसिफिक गोल्स विथ स्पेसिफिक सिचुएशंस। देन थर्ड वन, नेचर। These are considered to be stable in nature. तो स्टैंडिंग प्लान जैसा कि रिपीटेडली यूज्ड है, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, तो इसका नेचर स्टेबल है। एंड सिंगल यूज प्लान, दीज आर कंसिडर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। सो ज़्यादा मैंने पॉइंट्स नहीं लिए, 3 ही लिए हैं, बट इंपॉर्टेंट 1 लिए हैं, ठीक है। बाकी और डिफ्रेंसिएशन आपको तैयार करने हो तो यू कैन टेक ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मीनिंग एज वेल एज एग्जाम्पल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो अब हमें 8 टाइप्स ऑफ प्लान को डिस्कस करना है, एंड जैसा मैंने कहा एनिमेशन की मदद मैंने ले रखी है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान डेपिक्टेड इन दिस पिक। ओके, सो आप देखिए, गेस करिए इसको क्या हो सकता है, और उस 8 टाइप्स ऑफ प्लान में से ये कौन सा हो सकता है।
आप देख सकते हैं इमेज तो बहुत सिंपल सी है, एंड सेकेंड इमेज भी आप देख सकते हैं, एंड आई होप कि आप सब पहचान गए होंगे, एंड इट इज ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. Objectives are those end points for the attainment of which all the activities are undertaken. So एक वो लास्ट पॉइंट ऑफ फोकस है जिसको अटेंड करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, एम्स और पर्पस that organization wish to achieve over varying period of time. Okay, so now let's take an example. To make available the employment 200 pupils every year. So this can be an objective of an enterprise कि हर साल हम 200 pupils को employment provide करेंगे. So now let's move on to the next type of plan, again with the help of animation. आपने सभी लोगों ने आई थिंक ये मूवी भी देखी होगी और ये सीन भी सबको याद होगा. आई नो कि आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये बाहुबली मूवी का वॉर के फील्ड में एक बनाई जाने वाली चीज है ना, प्लान है उनका. और अगेन ये स्टोरी भी बचपन में हम सभी ने पढ़ी है, देखी है, एनिमेटेड वे में भी देखी हुई है. क्रो एंड वाटर, है ना, कैसे वो उस पॉट में से वाटर पीने के लिए उसमें पत्थर डालता है और पानी ऊपर आ जाता है ना. सो ये दोनों पिक्चर किस टाइप ऑफ प्लान को डिपिक्ट करते हैं? तो दिस इज स्ट्रैटेजी. नाउ लेट्स हैव द मीनिंग. It refers to a plan which takes into account the environmental opportunities and threats and the organizational strength and weaknesses and provides an optimal match between the organization and the environment. जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके मीनिंग में बार बार बताया गया है कि हमारे बिजनेस के होने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को ध्यान रखते हुए, बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को ध्यान रख करके बनाई जाने वाली स्ट्रैटेजी है. बाय मीन्स एक प्लान है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के और बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को एडजस्ट करने की कोशिश करता है. सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजी. सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. द चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सिलेक्शन ऑफ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक. जैसे एडवर्टाइजिंग कराना है आपको अपने प्रोडक्ट का, तो देयर आर लॉट ऑफ वे टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं. देन सिलेक्शन करना सेल्स प्रमोशनल टेक्निक का. ओके, सो दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजी. नाउ लेट्स हैव अ केस स्टडी क्वेश्चन. जैसा मैंने पहले ही कहा था कि वी विल हैव फ्यू केस स्टडी क्वेश्चन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. सो you need to identify the plan. So a case is there. India has 22 of the world's 30 most polluted cities. Therefore, the central government has approved an outlay of rupees 10,000 crore for 3 years till 2022 to subsidize electric vehicle and drive the adoption of electric mobility in the country. So ये case है. And what you need to do, you need to identify the type of plan being described in the above lines. So आप अब चाहे तो यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और जो अब तक हमने पढ़ा उसको दिमाग में रख कर सोचिए कि ये किस टाइप का प्लान हो सकता है. एंड द आंसर इज स्ट्रेटेजी. ओके, अब आप अगर आप पिक कर गए देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं पिक कर पाते हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके स्ट्रेटेजी की मीनिंग को देख लें एंड उसके बाद उसको मैच करके देखने की कोशिश करें. यू विल गेट द पॉइंट. ओके, सो now let's move on to the next type of plan, again with the help of picture, with the help of animation. So आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर, no credit please don't ask. आप अक्सर शॉप पे ऐसे लगे हुए पोस्टर्स देख लेते हैं. अगेन ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए या फिर आपने किसी और चीज़ों में देखा हुआ जिसको मैं भी बोलना नहीं चाहता, बट आप खुद पिक करिए. एंड देन फाइनली वो नाम आपके सामने आ ही गया स्क्रीन पर, पॉलिसी. लर्न, अंडरस्टैंड, कंप्लाई. सो दिस इज पॉलिसी. Okay, so now let's have the meaning of policy. A policy is verbal, written or implied overall guide setting up boundaries that supply general limits and direction in which managerial actions takes place. So जो भी हमारे managerial actions होते हैं, जो भी activities होती हैं, उसको कैसे करना, उसके direction के लिए एक general guidelines होते हैं policies. ठीक है, तो इसके example को आइए देखते हैं. Under personnel policy, it can be decided that the basis for the promotion of employees will be their age. So
जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमोशन के अलग अलग अपने अपने कंपनी के पॉलिसीज़ हो सकती हैं, बट किसी एक रैंडम कंपनी की हम बात करते हैं, वहाँ प्रमोशन की जो पॉलिसी है वो क्या है, उनकी एज। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है देयर की, वो आप सही कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंडर सेल्स पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ओनली फॉर कैश पेमेंट। तो हर फर्म का अपना अपना अलग रूल पॉलिसी हो सकता है इन दिस रिगार्ड, कि कुछ फर्म इस तरह की भी पॉलिसी रखती हैं कि कैश पेमेंट एज वेल एज क्रेडिट भी कर सकते हैं सेल। और यहाँ पर जिस एग्जांपल को हमने ले रखा है, इस पर हम देख पा रहे हैं कि ओनली कैश सेल्स में गुड्स को बेचने की बात हो रही है। सो दिस इज अ सेल्स पॉलिसी. Okay, so I have taken two examples under personnel policy and sales policy. Now let's have the next type of plan again with the help of animation. So देखिए, आपको अब अपनी स्क्रीन पर मैं थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है, एक प्रोसेस सा दिख रहा है, लोन एप्लीकेशन, देन डॉक्यूमेंट सबमिशन, देन स्क्रीनिंग प्रोसेस, देन नेगोशिएशन, देन loan application finalization and then finally approval of loan. So आप होप सो समझ गए होंगे कि ये लोन लेने का एक क्या है, प्रोसीजर है. So what is the next plan? Procedure. और आपको इस इमेज से आपके माइंड में एक केस स्टडी क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. So let's have the meaning of procedure. Procedures are those plan which determine the sequence of any work performance. आप कोई भी वर्क करते हो तो उसको वर्क को करने के जो वेरियस स्टेप्स हैं उसको किस सीक्वेंस में करना है, पहले क्या बाद में क्या. It can be defined as the exact manner in which an activity has to be accomplished. ठीक है. Now let's take an example. The recovery of money from the debtors can be made in the following order. अगर आपको अपने डेटर से पैसे वसूल करने, रिकवर करने हैं, तो आप किसी ऑर्डर को फॉलो करोगे, दैट इज सीक्वेंस को, स्टेप्स को. वो क्या हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी आप देखोगे वही होना चाहिए, बट इट कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो देखिए क्या है वो, राइटिंग लेटर्स, तो आप डेटर्स को लेटर्स लिख करके इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग योर डेट्स. देन कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, देन आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे टेलीफोन से फॉर द क्विक रेस्पॉन्स. देन मीटिंग पर्सनली, अब आप सामने मिलेंगे. अगर टेलीफोन कांटेक्ट करने के बाद भी आपको उससे रिकवरी नहीं मिलती है तो आप उससे पर्सनली फिर मिलते हैं. एंड फाइनली टेकिंग लीगल एक्शन. पर्सनली मिलने के बाद भी अगर वो आपको आपका रिकवरी नहीं देता है डेटर्स आपका अमाउंट, तो आप उसके ऊपर फिर लीगल एक्शन लेते हैं. सो ऑल दीज आर द सिस्टम, टेक्निक है, एक स्टेप है, सीक्वेंस है आपके वर्क को करने का. ठीक है. ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स उसमें प्लस माइनस किए जा सकते हैं. सो दिस इज ऑल द एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर. नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान. जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्लान इज साइटेड इन द पिक. यू कैन सी दैट मार्केटिंग आइडियाज, एंड जिसमें कि आप कुछ देख रहे हो, कुछ सजेशंस, एक तरह से फेसबुक, ट्विटर, एप्स, एंडोर्समेंट, वायरल वीडियोस, कॉन्टेस्ट. अब इससे आपको दिमाग लगाइए कि यहाँ पे मीटिंग में किस चीज को लेकर डिस्कशन हो रहा है. अनदर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. सम आर ऑन द ओपिनियन दैट न्यू प्रोडक्ट लाइन और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ डिस्कशन के अंदर चल रहा है. सो व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन? इट इज मैथड. मैथड कैसे हुआ? लाइक मार्केटिंग आइडियाज मैथड, मतलब कि फेसबुक से करेंगे कि ट्विटर से करेंगे या एंडोर्समेंट करेंगे कि वायरल करेंगे वीडियोस को, एटसेट्रा. ठीक है. सो ऑल दीज आर द मैथड्स. सो लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ मैथड. इट रेफर्स टू दैट प्लान which determines how different activities of the procedure are completed. तो प्रोसीजर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको कंप्लीट करने के मैथड क्या हो सकते हैं, उसको सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैथड. ठीक है. और आप सब जानते हो हर एक्टिविटी को करने के एक नहीं कई तरीके हो सकते हैं, तो उसी को हम मैथड, बेस्ट जो होता है हमारा उसी को हम चुनते हैं, एंड दैट इज नोन एज मैथड. सो एग्जांपल इज फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएशन. अकाउंटेंसी का मैंने एग्जांपल ले रखा है. यू ऑल नो दैट कि हमने 11th क्लास में डेप्रिशिएशन के 2 मेथड्स पढ़े हैं, और हमें तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में दिया ही जाता है कि हमें किस मेथड को फॉलो करना है, बट इन रियल लाइफ वी हैव टू चूज द मेथड. ठीक है. सो फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएशन, वेदर टू यूज स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन. अनदर एग्जांपल, अ फर्म मे अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स. आपने पढ़ा हुआ ट्रेनिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं टू एनहांस द नॉलेज एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेथड्स. नाउ नेक्स्ट,
आप सबसे इजी मैं कह सकता हूँ टाइप ऑफ प्लान में जो पहचान सकते हो, आप देख सकते हो क्या लिखा है, नो स्मोकिंग इन दिस एरिया. नेक्स्ट पिक्चर, नो पार्किंग, एंड देन डूज एंड नॉट डोंट डूज, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रूल. ठीक है, आप अपने माइंड में इस पिक्चर को रखिए जिससे आपको इजी आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा केस स्टडीज में. नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ रूल सेज. Rule is a specific statement that tells us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. तो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, that cannot be decided by you, that is written and you have to follow the stated rule that need to be observed in that particular situation. Since rules are essential for discipline and smooth operation of the business, penalty is generally imposed on violation of a rule. ठीक है, तो रूल को इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे ऑपरेशंस फ्लुएंटली हो सके और इनडिसिप्लिन क्रिएट होने पर उसके खिलाफ पेनल्टी भी होती है. जैसे हम देखते हैं नो पार्किंग जोन लिखा हुआ है और आप वहां पार्किंग कर देते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाती है, ऐसा ही कुछ है ना. सो रूल्स में ऑलवेज पेनल्टी देखने को मिलती है. सो हियर आर द एग्जांपल्स. द रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री as well as no parking zone, all these are the examples of rule. Now again we are going to have case studies question to identify the types of plan जो अब तक हमने पढ़े उनमें से. ठीक है, in this way you can learn very easily the various types of plan, और जो भी confusion बीच में आ रहे होंगे वो भी easily clear हो जाएंगे. ठीक है, Varun has recently joined as a purchase officer in Kings Limited. He has been advised to place order for the raw materials from one supplier only, as the company does not prefer to deal with multiple suppliers at the same time. Identify the type of plan being described in the above line. Okay, so very easy one, it is policy. अब अगर आपको कंफ्यूजन हुआ कि ये पॉलिसी कैसे है, तो नाउ अगेन रिवाइंड द वीडियो एंड देखिए आप पॉलिसी की मीनिंग में क्या लिखा है, देन मैच करके देख लो आप. नाउ नेक्स्ट केस, Harsh Enterprises always fills up the vacancies at senior position through internal sources. Therefore, when Mr. Vipin Rai retired from the position of general manager, Mr. Devashish Roy was appointed from the post of deputy general manager to his post. So आप देख सकते हो यहाँ पर एक पर्सन रिटायर होता है फ्रॉम जनरल मैनेजर पोस्ट एंड देन उसका जो डिप्टी जनरल मैनेजर होता है वो उसी पोस्ट पर प्रमोट होकर के उसको ज्वाइन कर लेता है. So you need to identify the type of plan being described in the above lines and the answer is method. ठीक है, so hope so कि इन दोनों केस के साथ आपको मीनिंग समझ में अच्छे से और आ गई होंगी. Now let's move on to the next type of plan. Hope so आप सभी ने ऐसा होर्डिंग, ऐसा आपने पम्पलेट जो भी है बहुत कुछ देखा होगा और सभी इसमें एंजॉय करते हैं. दैट इज स्पोर्ट्स डे को लेकर स्कूल का, है ना. आप देख सकते हैं डेट टाइम सब कुछ मेंशन है ना, ईयर्स, उसके बाद और भी जो कुछ हो सकते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, है ना. सो ये एक एग्जाम्पल है और क्या हो सकता है. सो इट इज अ प्रोग्राम. नाउ लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. जैसा अभी हमने देखा स्पोर्ट्स डे है तो उसका ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना हो गया, पॉलिसीज उसके लिए बनाई जाती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, एंड रूल्स भी बनाए जाते हैं सो दैट कि डिसिप्लिन वे में वो हो सके. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. द प्रोग्राम आर वेरी डिटेल्ड प्लान. अ न्यू प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर एवरी न्यू वर्क. जैसे कि ये स्पोर्ट्स डे का था, ऐसे ही अगला होगा आपका एनुअल डे, स्कूल्स एनुअल डे, तो उसके लिए भी एक ऐसा ही प्रोग्राम बनेगा, है ना. तो इस तरह से प्रोग्राम हर एक अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग होता है. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. The literacy program of the government is categorized as a major program, whereas the literacy program of any one school is a minor program. Okay, and then again see this little clip. Something is going on. ट्राई करिए कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट एक और देखिए. होप सो कि आप इससे बहुत इजीली पहचान पाओगे कि किस तरह का प्लान है यहाँ पर. एंड द थर्ड वन, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी वन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बजट. ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स थे बजट के. So now let's have the meaning of budget. Budget is the statement of expected result expressed in numerical terms. Budget is that planning which provides detail about estimated money, material, time and other resources.
यहाँ ध्यान देने वाली बात, अक्सर लोग बजट का मतलब किससे ले लेते हैं, तो सिर्फ मनी से। तो एस्टिमेटेड मनी तो है ही, मटेरियल है, टाइम है एंड अदर रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। ऑल दिस कंसिडर्ड अंडर बजट फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। एंड देन एग्जांपल इज sales budget may forecast the sales of different products in each area for a particular month. And then again, a case study question to identify the type of plan. Seema runs a catering business. Every time she gets an order for catering, she prepares a plan depicting the number of workers required to deliver the order. And you need to again identify the type of plan being described in the above lines, and this is budget. अब आप कहोगे इसमें फाइनेंस तो है ही नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो ये आपके फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए बनाया हुआ एक प्लान है, सो इट इज़ अ बजट। होप सो इन सारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से, एनिमेशन से एंड केस स्टडीज क्वेश्चन से एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आप सभी को सारे टाइप्स ऑफ प्लान समझने में हेल्प मिली होगी। और होप्स हो कि आप आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस में, केस स्टडीज़ में इनके वजह से कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।